कसं त्याच्यावरच क्लिक. Now we are starting today from this slide. So last lecture we had seen about the safety issues and what are the safety rules to be followed, and if we are not following the safety instruction, then what are the consequences are there. We have seen if we are avoiding the instruction, safety instruction, then the accident occurs. Okay, so we have seen about this. Now today we are going to see the common first aid kit items. Okay, if something happens, like any injury happens because of the if you are not following the rules and regulations, safety rules and regulation, then it is a possibility that you will face the accident. So in that case, what are the common first aid kit items are there that we have to see. So in this, the first one is bandages. Okay, bandages, all we know what are the bandages. If we are getting any kind of injury to hand or finger or anywhere on the body, then we apply the bandage for the small injuries. Okay, then another is a antiseptic spray. Okay, where is the antiseptic spray? So we use this spray to just antiseptic spray are essential for cleaning out the skin effects and wounds. Okay, wherever the wound is occurred, so at that place this antiseptic spray is sprayed, then because of which the cleaning of that particular area, that particular skin is done. Okay, what is the use of cotton? All we know, the cotton is used for just what wiping out the वुंड. ओके, जहाँ पे भी आपको इंजरी लगी है वहाँ के एरिया को वाइप आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉटन यूज करते हैं. अनदर वन इज एप्सम सॉल्ट. द एप्सम सॉल्ट इज यूज फॉर व्हाट? एप्सम सॉल्ट, here is the epsom salt. See, really useful for drawing out the infection. अगर जहाँ पे भी आपको infection हुआ है, जहाँ पे भी आपको इंजुरी लगी है, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम इस एप्सम सॉल्ट का यूज़ करते हैं. ओके, another first aid kit item is your adhesive tape. Okay, we use the adhesive tape for what? For what purpose we are using? This is the adhesive tape. Everyone must have seen this. आपने देखा होगा इसको. It is easy to wrap and use for covering wounds, support the muscle. Okay, अगर आपके नी को okay, कोई इंजुरी लगी है तो वहाँ पे क्या होते हैं, मसल जॉइंट होता है. ओके, तो जहाँ पे भी जॉइंट्स होते हैं हमारे, तो वहाँ पे जो भी मसल होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए हम ये एडिसिव टेप यूज़ करते हैं. ओके, आपने ये देखा भी होगा, जब भी आप मतलब कोई स्पोर्ट्स में खेलते हो तो आपको इंजुरी लगती है, तो फिर हाथ को हो या फिर पैर को हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या किया जाता है, मोस्टली नी को अप्लाई करते हैं, हम हमारे एल्बो को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे एल्बो को या फिर नी को ज़्यादा इंजुरी को फेस नहीं करना पड़ता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस एडेसिव जो टेप है उसको अप्लाई करते हैं. ओके, इट इज़ यू एंड इट इज़ इजी टू रैप एंड यूज फॉर कवरिंग द wounds or to support the muscle. Okay, got this one. Another one is your scissors. Okay, scissors क्यों यूज करते हैं हम? scissors are used for टू कट द बैंडेजेस मटेरियल. ओके, हमको पता है सीजर किस लिए यूज़ करते हैं, हम कोई भी चीज़ को कट करने के लिए. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड है उसमें हम इसको क्यों यूज़ करेंगे, टू जस्ट कट द बैंडेजेस मटेरियल. for that purpose we are using this scissor in our first aid kit. Okay, best you can use which have a rounded ends. Okay, इसमें नॉर्मली हम ऐसे ही यूज़ करते हैं. ओके, सीज़र जो हमारे घर पे रहते हैं नॉर्मली, लेकिन जो मेडिकल यूज़ के लिए होती है उनको क्या होता है, उनका जो एंड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, राउंडेड होता है. ओके, जिसकी वजह से जो कटिंग है उसमें इजी जाता है कट करने के लिए, या फिर स्मूथनेस आता है कटिंग के लिए. ओके, तो दिस इज़ अबाउट द सीजर. एंड एंटीसेप्टिक ग्लव्स. ओके, जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं हम? ग्लव्स हेल्प यू टू कीप योर हैंड्स व्हेन यूजिंग द एंटीसेप्टिक एंड अदर प्रोडक्ट्स. ओके, आपके जो हाथ है उसको कोई भी दूसरा इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए, कि वह अदरवाइज कुछ भी अगर हम केमिकल यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके हाथों पे नहीं होना चाहिए. इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं या फिर जो हम
फर्स्ट एड किट यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ को कुछ अनदर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम इस ग्लव्स का यूज़ करते हैं. सो दीज आर द सर्जिकल ग्लव्स और एंटीसेप्टिक ग्लव्स भी हम इसको बोल सकते हैं. ओके, सो ग्लव्स हेल्प यू टू कीप योर हैंड्स when using the antiseptic and other products. Okay, जब भी हम एंटीसेप्टिक या फिर अनदर मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ को सेफ रखने के लिए हम इस ग्लव्स का यूज़ करते हैं. ओके, हम इसको हाथों में पहनते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉमन फर्स्ट एड किट आइटम्स. ओके, so our next slide is about the फायर सेफ्टी. ओके, फायर सेफ्टी के बारे में हमने ऑलरेडी हमारा जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है 2 दिन का, जब भी हम एंटर करते हैं कैंपस में तो उसके बाद में हर एक जो बंदा नया आता है उसको फायर सेफ्टी मतलब इंडक्शन जो ट्रेनिंग है उसके अंडर फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग आता है. वो हर एक को क्या करना पड़ता है, उसके उसमें से गुजरना पड़ता है. हर एक को फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग लेना पड़ता है. ओके, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि फायर सेफ्टी के कॉजेस क्या होते हैं, हाउ वी क्लासीफाई द फायर, हम फायर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर है उसको उसके लिए एक्सटिंग्विशर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं. तो फिर वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम इस यूनिट के अंदर जो पॉइंट है हमारा फायर सेफ्टी उसके अंदर ये देखने वाले. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज अ फायर. फायर क्या होता है actually? What is the fire? Fire is a rapid chemical reaction called the combustion. Okay, what is the combustion? Combustion means what? जलना. मतलब कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो इट इज़ कॉल्ड एज अ फायर. ओके, हम घर पे भी देखते हैं जब हमारा गैस हम ऑन करते हैं तो क्या आता है, फायर आता है. लेकिन वो फायर किस वजह से आता है, इट इज़ ड्यू टू द कम्बशन ऑफ गैसेस. ओके, हमारे घर पे जो गैस आता है, ओके, ब्यूटेन, जब ब्यूटेन का वहाँ पे कंबशन होता है ब्यूटेन गैस का, तब क्या होता है, ये जो गैस का जो फायर है वो जनरेट होता है. ओके, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर डिपेंडिंग ऑन द कि जो आग है, जो फायर है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो कंबशन है उसका जो कंबशन है उसका बेस क्या है, मतलब वो क्यों जल रहा है. ओके, मतलब जब हम लकड़ी जलाते हैं तो क्या होती है, तब फायर जनरेट होता है, मतलब उसका कॉज क्या है, उस फायर का लकड़ी है. ओके, जब हम गैस जलाते हैं अपना तो वहाँ पे जो कंबशन है उसका कॉज क्या है, उसका कॉज है ब्यूटेन. ओके, तो अनदर वन इज जब इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. ओके, तो वो स्पार्क की वजह से भी क्या होता है, वहाँ पे आग लग सकती है. ओके, सो द कॉजेस ऑफ फायर आर डिफरेंट. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉजेस ऑफ फायर there is a classification of fire extinguisher and the fire also. Okay, so if anyone okay, तो ये जो है फायर, इसके तीन जो है मेन कंपोनेंट होते हैं फायर के. कौन से, एक तो होता है हीट. ओके, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है फायर. ओके, ये तीनों में से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये तीनों के मिलके, तो इसमें से कोई एक भी अगर यहाँ पे गायब है तो फिर यहाँ पे क्या नहीं होगा, फायर नहीं होगा. ओके, तो फायर को होने के लिए तुमको हीट भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, तभी क्या होगा, वहाँ पे फायर हो सकता है. ओके, मतलब वहाँ पे आग लग सकती है. एनी वन ऑफ दिस एलिमेंट इफ नॉट प्रेजेंट इन दिस ट्रायंगल देन कंटिन्यूएशन ऑफ बर्निंग नॉट ऑकर्ड, मतलब जो बर्निंग है वो कंटिन्यूस नहीं रहेगी, मतलब हम उस आग को बुझा सकते हैं वहाँ पे. ओके, इफ एनी वन ऑफ दिस थ्री एलिमेंट इज रिमूव द फायर कैन बी कंट्रोल और एक्सटिंग्विश. ओके, यहाँ जो ट्रायंगल है इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट अगर हम डिसअपियर कर देंगे, अगर कंट्रोल करने के लिए हम अगर सक्सेसफुल रहेंगे तो क्या होगा, हम जो आग लगी है उसको कंट्रोल कर सकेंगे या फिर एक्सटिंग्विश कर सकेंगे. ओके, सो व्हाट इज द हीट, हीट इज नथिंग बट द इग्निशन सोर्स सच एज फ्लेम, स्पार्क और हॉट सरफेस. ओके, हीट क्या होती है, इट इज़ द इग्निशन सोर्स, कॉज ऑफ द फायर. ओके, वो क्या है कि इग्निशन सोर्स है, जैसे कि क्या, फ्लेम, लाइक फ्लेम ऑफ जो हमारी मेनबत्ती, हम मेनबत्ती लगाते हैं जब लाइट जाती है उसका फ्लेम रहता है, गैस का फ्लेम रहता है. ओके, सो इग्निशन सोर्स सच एज अ फ्लेम, स्पार्क जो होता है इलेक्ट्रिक स्पार्क वो भी कह सकते हैं, अदरवाइज हॉट सरफेस, इसकी वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है. अदर क्या है,
फ्यूल, अदरवाइज फायर भी बोल सकते हैं हम उसको। तो फ्यूल क्या है इसमें, पेपर हो सकता है, पेपर फायर, वुड भी हो सकता है, अदरवाइज ऑयल भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एनी गैस। अनदर वन इज अ फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक क्लोथ हो सकता है, या फिर केमिकल रह सकता है। ये क्या हो सकता है उसमें, फ्यूल हो सकता है जिसकी वजह से ये फायर लगा है। अनदर वन इज ऑक्सीजन, oxygen usually supplied by the air around us. So we know that oxygen is present in our atmosphere, in the air, okay, because of which हम क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इफ देर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन जो आपकी फायर है वो क्या रहेगी, कंटिन्यूएशन में रहेगी। ओके, ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फायर, उसके बिना आपकी आग नहीं लग सकती। ओके, सो बर्निंग ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ओके, कितना परसेंट ऑक्सीजन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट? ओके, यू हैव टू आंसर दिस वन। ओके, कि how much percentage of oxygen is present in the atmosphere. So this is about the introduction of fire. So another slide is our common causes of fire, कि जो fire होता है उसके causes क्या है। okay, एक तो होता है electrical fault, another one is open flame, another one is flammable liquids or gases like petrol, LPG, लाइक सॉल्वेंट एंड लीकिंग सिलेंडर्स। ये क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस है जिसकी वजह से आग लग सकती है। ओपन फ्लेम्स में क्या आता है, कैंडल्स आते हैं। ओके, कैंडल्स यू नो, मैचेस आते हैं, मैच बॉक्स। ओके, आग पेटी बोलते हैं उसको हम। अनदर वन इज वेल्डिंग स्पार्क, जहाँ पे भी वेल्डिंग किया जाता है, ओके, वहाँ पे वेल्डिंग स्पार्क होता है, उसकी वजह से भी ये क्या है, ओपन फ्लेम है जिसकी वजह से आग लग सकती है। अनदर वन इज योर स्मोकिंग मटेरियल, अगर कोई स्मोक कर रहा है उसके उससे भी क्या होता है, हीट जनरेट होता है, तो वो भी आपका कॉज ऑफ फायर हो सकता है। अनदर वन इज योर इलेक्ट्रिक फॉल्ट, इलेक्ट्रिक फॉल्ट पे क्या होता है यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट। ओके, ओवरलोडेड सॉकेट, मतलब सॉकेट का जो लिमिट है उसके उससे ज़्यादा अगर हम वहाँ पे लोड दे रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक का, ओके, उस पर हम मिक्सर भी लगा रहे हैं, उस पर हम हीटर भी लगा रहे हैं, वहाँ पे उस पर ही हम एक ही जो स्विच है उस पर अगर ओवरलोड कर दिया तो क्या हो सकता है वहाँ पे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ओके, स्पार्क हो सकता है। देन अनदर वन इज डैमेज वायरिंग। ओके, अगर वायर डैमेज है कहीं पे भी, अगर वो टूटा है, उसका जो प्लास्टिक का कवरिंग रहता है अगर वो नहीं है वहाँ पे, तो फिर क्या हो सकता है वहाँ पे, स्पार्क हो सकता है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट कॉजेस, open flame causes, and flammable liquid or gases. Another one is cooking accident, we all know, unattended stoves and overheated ऑयल। ओके, हम जब खाना बनाते हैं तब क्या होता है कि हम वैसे ही गैस छोड़ देते हैं, अनअटेंडेड स्टोव्स बोलते हैं उसको। ओके, मतलब हो गया है, मतलब हमको पता ही नहीं है कि हमारा जो गैस है वो ऑन है, स्टोव उसका ऑन है। ओके, तो फिर उस केस में भी आग लग सकती है, कुकिंग एक्सीडेंट हो सकते हैं। अदरवाइज ओवर हीटेड ऑयल, खाना बनाते वक्त ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट को आपको फेस करना पड़े। उसके बाद में पुअर हाउस कीपिंग, वेस्ट, क्लटर, अनसेफ केमिकल स्टोरेज, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है वहाँ पे, फायर लग सकता है। अनदर वन इज हाई रिस्क सिचुएशन, कहाँ पे रहता है, अनअटेंडेड हीटर्स, इम्प्रॉपर रिफ्यूलिंग, देन ब्लॉक्ड एस्केप राउट्स एंड यूजिंग द रॉन्ग एक्सटिंग्विशर। अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो फिर क्या होता है, हाई रिस्क हो जाता है, मतलब आग वहाँ पे पानी की वजह से लगी है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से लगी है, और वहाँ पे हम अगर पानी डालते तो फिर वो जो आग है वो क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से जो आग लगती है उसको हम पानी के यूज़ करके उसको हम एक्सटिंग्विश कर नहीं सकते, बुझा नहीं सकते। ओके, तो इट इज़ अ रॉन्ग मेथड। सो हम वहाँ पे क्या करेंगे, रॉन्ग एक्सटिंग्विशर यूज़ करें, तो ये इस सिचुएशन में क्या होता है, रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। अनदर वन इज़ योर प्रिवेंटिव एक्शन, इसमें क्या है, क्या करना है आपको, अगर आग लगती है तो इंस्पेक्ट द वायरिंग, वायरिंग जो है हमारे घर पे उसको हमेशा देखते रहना चाहिए। स्टोर द फ्यूल सेफली, जो भी फ्यूल है आपके घर के अंदर, अगर आप रॉकेल स्टोर कर रहे हो, ओके, कोई कोई क्या करता है, पेट्रोल घर में ला के रख देता है बॉटल में, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आग लग सकती है अगर स्पार्क हो गया तो।
कीप वर्क एरियाज क्लीन एंड नेवर इग्नोर द स्मॉल लीक्स एंड स्पार्क। हमको हमेशा क्या करना है, अपना जो एरिया है क्लीन रखना है। एंड जो भी अगर कोई लीक और स्पार्क दिखता है हमको, तो उसको हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर में। अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मुझको मैसेज कर सकते हो। ओके, स्किप केलं मी त्याला, झाला असेल ना सर? थोडंसं होतं का? मुंबई